Hello, students, and welcome. This is Jyoti Rajput, and today's topic is structure and function of prokaryotic cell, E. coli. Prokaryotic, ये जो word है, it has come from a Greek language, जिसका मतलब है pro का मतलब है primitive and karyon means nucleus. इसका मतलब है हम ऐसे cells के बारे में discussion करने वाले हैं which is having old nucleus, very primitive nucleus. And these cells are small, very simple, and they are the most primitive one. Evolution में सबसे पहले ही आए होंगे ये. And they are found in the soil, air, water, plants and animals. So जब भी हम इनके genetic material की बात करते हैं, the nuclear material, this nuclear material, it is not surrounded by any kind of nuclear membrane. और जो भी इसमें डीएनए आरएनए या फिर प्रोटीन होगा, इट इज ऑलवेज इन डायरेक्ट कांटेक्ट विद साइटोप्लाज्म. ये जो ब्लू कलर का आपको नजर आ रहा है, दिस इज अ साइटोप्लाज्म. सो प्रोकैरियोटिक सेल्स कौन कौन से हो सकते हैं? दोज आर द बैक्टीरियल सेल लाइक द ई कोलाई. कुछ एग्जाम्पल हैं लाइक द ब्लू ग्रीन एल्गी साइनोबैक्टीरिया and the algae and also the mycoplasma. These are some of the example of the prokaryotic cell. So ये generally बहुत ही छोटे होते हैं, they are very small और बहुत ही fast multiply करते हैं division के द्वारा. They do multiplication very fast and they are of various shapes and of various sizes. Further, when we talk about the shapes, the bacteria, there are four shapes. Four basic types of shapes are present in bacteria. The very first is the bacilli. We call them rod shaped bacteria. So, here in this diagram, you can see these are the rod shaped bacteria. दूसरा आता है shape that is coccus, spherical. So, these round shaped structures, the bacteria having round shaped structures, these are called coccus or you can say spherical. Next is Vibrio. So whichever comma shaped bacteria are called as Vibrio, these are comma shape. And the fourth shape is the Spirillum, where they are kind of having helical shape like structure. Further, these prokaryotic cells, these are made up of single cells. So that is why we call these are unicellular organism. और ये जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, इनके पास ना तो माइटोकॉन्ड्रिया है, ना ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ना गोल्जी apparatus है, ना ही लाइसोसोम्स, ना ही सेंट्रियोल इसमें जो प्रेजेंट होता है हेयर, बट राइबोसोम्स जरूर प्रेजेंट होंगे. और इनके पास न्यूक्लियस नहीं होता. न्यूक्लियस जैसा दिखने वाला स्ट्रक्चर न्यूक्लियोइड होता है. जब भी हम न्यूक्लियोइड को स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, here the nucleoid structure, it is a kind of a circular, it is a kind of a single circular chromosome. It is a kind of a single circular chromosome. It is present, which is going to be double stranded, and it is always present in the cytoplasm. And here we call this is a nucleoid. So prokaryotic cell में जो nucleus होता है, we call them this is nucleoid. So organism in which the nuclear material, it is bounded by a definite nuclear membrane. So here जहाँ पर भी in the organism in which nuclear material, the genetic material which is not bounded by any kind of nuclear membrane, it is called as prokaryotic cell. So prokaryotic cell, they do not have nuclear membrane. It means the genetic material, it is suspended in the cytoplasm. Further, whenever we talk about the prokaryotic cell, the cell wall of the prokaryotic cell, it consists of amino sugars and muramic acid. So here these are some of the layers which are present in the prokaryotic cell. सबसे पहले जो layer आपको नजर आएगी in the prokaryotic cell, first which is going to be in contact with the layer which is in contact the layer which is in contact with the cytoplasm, it is the plasma membrane. And then after the plasma membrane comes the cell wall, and after the cell wall comes the that is another layer, glycocalus, you can say capsule or slime layer. So this is how there are three layers are present in the prokaryotic cell. उसमें से जो middle layer है cell wall, it is made up of amino sugar and muramic acid. Another thing in prokaryotic cell, the genetic material, that is the DNA, it is present. The genetic material, it is the DNA which is present, and the DNA, it is in entangled form. It is present in tangled form. जैसे कि धागा होता है एकदम
यू कैन से कि इट इज़ अ काइंड ऑफ अ थ्रेड जो कि बहुत ही टैंगल्ड फॉर्म में है। वैसे ही यहाँ पर यू कैन सी द डीएनए द जेनेटिक मटेरियल इट इज प्रेजेंट बट इट इज कम्प्लीटली टैंगल्ड फॉर्म, और इसमें कोई भी आसपास जेनेटिक मेम्ब्रेन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होगी। और ऐसे भी ऑर्गेनल्स जिसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स ये भी एब्सेंट होंगे साइटोप्लाज्म में, जैसे कि क्लोरोप्लास्ट है, माइटोकॉन्ड्रिया है, दीज ऑल आर एब्सेंट इन द प्रोकैरियोटिक सेल, दीज आर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल। फर्दर, तो यहाँ पर जो एंजाइमेटिक फंक्शन जो है, माइटोकॉन्ड्रिया तो नहीं है, तो माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन कौन करता है? इट इज डन बाय द सेल मेम्ब्रेन, जिसको अभी अभी हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोला था। सो प्रोकैरियोटिक सेल में देयर इज प्रेजेंस ऑफ द लेयर, देयर इज प्रेजेंस ऑफ द लेयर दैट इज द यू कैन से प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसके बाद आती है दैट इज सेल वॉल, और उसके बाद आती है दैट इज ग्लाइकोकैलिक्स, यू कैन से कैप्सूल और स्लाइम लेयर। तो यहाँ पर there are some enzymes are present in this plasma membrane, or you can say the cell membrane, which does the function like that of the same of the mitochondria, इसीलिए mitochondria की जो है जरूरत नहीं है। Same यहाँ पर जो है in the prokaryotic cell there is absence of the chloroplast, but the chlorophyll it is present. So chlorophyll is in the form of distinct chloroplast, it is not present in the prokaryotic cell. prokaryotic cell में chlorophyll pigments हैं लेकिन chloroplast नहीं है। And in the prokaryotic cell there is presence of cilia, there is presence of flagella, और इस तरीके के streaming movement देखने मिलेंगे, okay, which is present in the prokaryotic cell like the bacteria cell, example like the E. coli. Further, here when we study about the ultra structure of typical prokaryotic cell, तो पहले हम एक्सटर्नल देख लेते हैं स्ट्रक्चर किस तरीके से प्रोकैरियोटिक सेल दिखाई देता है। सो बाहरी तरीके से हम जब पढ़ते हैं, सो देर आर प्रेजेंस ऑफ सेल एनवलप्स एंड दीज आर कंसिस्ट ऑफ द थ्री लेयर्स। सबसे बाहरी होगी ग्लाइकोकैलिक्स, फिर मिडिल लेयर है सेल वॉल, और फिर आ जाती है द थर्ड लेयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है इट इज द वन विच इज गोइंग टू बी इन कॉन्टैक्ट विद द साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म के कांटेक्ट में सबसे पहले जो होगी दैट इज गोइंग टू बी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यू कैन से सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा लेमा भी बोलते हैं, ओके। एंड देन कम्स द लेयर दैट इज सेल वॉल, और फिर बाहरी लेयर जो आ जाती है दैट इज द ग्लाइकोकैलिक्स। अब ग्लाइकोकैलिक्स डिपेंड करती है, ग्लाइकोकैलिक्स एक कैप्सूल हो सकती है या तो फिर स्लाइम लेयर। Further, when we talk about the very outermost layer, the outermost layer जो है that is the glycocalyx. Okay, ये एक तरीके के कोट के जैसे काम करेगी, but it differs in chemical composition and thickness. So अलग अलग बैक्टीरिया में अलग अलग composition और thickness present होगा glycocalyx में. So glycocalyx it is made up of macromolecules, polysaccharide and protein, जो कि हेल्प करता है बैक्टीरिया को किसी सबस्ट्रेटम के साथ अटैच करने में. So it helps in the addition. कुछ कुछ बैक्टीरिया में लूज शीथ होती है ग्लाइकोकैलिक्स की, जिसको हम स्लाइम लेयर बोलेंगे, और किसी किसी बैक्टीरिया में दे हैव थिक एंड टफ कोट दैट इज कॉल्ड एज कैप्सूल। सो ग्लाइकोकैलिक्स इट मे बी ऑफ स्लाइम लेयर और इट मे बी ऑफ द कैप्सूल टाइप। सो फर्दर ग्लाइकोकैलिक्स जो है इट प्रोटेक्ट्स द बैक्टीरिया फ्रॉम द फैगोसाइटोटिक एक्टिविटी। मतलब जैसे कि अगर ये कोई रेड कलर का कोई बैक्टीरिया है, ओके, सो कोई दूसरा सेल इस बैक्टीरिया को ना खाए, इसीलिए द ग्लाइकोकैलिक्स इट प्रोटेक्ट्स द बैक्टीरिया फ्रॉम द फैगोसाइटोटिक एनगल्फमेंट। और फर्दर द ग्लाइकोकैलिक्स जो है ये प्रिवेंट करता है एवापोरेशन ऑफ मॉइस्चर, तो इस तरीके से डेसिकेशन जो है प्रिवेंट होगा और रिटेन करके रखता है मॉइस्चर, ये ग्लाइकोकैलिक्स के लिए। फर्दर नेक्स्ट लेयर आती है दैट इज द सेल वॉल। मतलब सबसे बाहरी लेयर जो है दैट इज ग्लाइकोकैलिक्स, देन इज द मिडिल लेयर दैट इज द सेल वॉल। So you can see the cell wall it is present below the glycocalyx. ये जो सेल वॉल है एक्चुअली इट इज द वन विच इज मेंटेनिंग द शेप ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल और प्रिवेंट करता है ऑस्मोटिक लाइसिस। मतलब कि एक तरीके का सॉल्ट और वाटर बैलेंस मेंटेन रहेगा बैक्टीरिया के अंदर, सो इट इज बीन प्रोटेक्टेड बाय द सेल वॉल। फर्दर सेल वॉल जो है it is made up of peptidoglycan or murin in eubacteria, and cell wall it is made up of pseudopeptidoglycan in archaebacteria. अब दोनों बैक्टीरिया में डिफरेंस क्या है? यू बैक्टीरिया ये नॉर्मल बैक्टीरिया, ये ट्रू बैक्टीरिया है जो कि फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन, फेवरेबल एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर में अवेलेबल होते हैं।
बट ये जो आर्की बैक्टीरिया होते हैं, दे आर ऑलवेज प्रेजेंट इन एडवर्स एक्सट्रीम कंडीशन। जैसे कि वेरी सॉल्टी वाटर है, तो यहाँ पर जो बैक्टीरिया होंगे दोज आर आर्की बैक्टीरिया। द बैक्टीरिया विच आर प्रेजेंट इन वेरी हाई टेम्परेचर, ऐसे बैक्टीरिया जो होंगे दीज आर आर्की बैक्टीरिया। कोई कोई बैक्टीरिया होते हैं विच आर प्रेजेंट इन -डिग्री सेल्सियस ऑल्सो, दीज बैक्टीरिया कॉल्ड एज आर्की बैक्टीरिया। सो डिफरेंसेस जो है यू बैक्टीरिया में और आर्की बैक्टीरिया में ये है, यू बैक्टीरिया दे आर फाउंड इन द प्लेस वेयर देयर इज अ फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन, फेवरेबल टेम्परेचर। लेकिन आर्की बैक्टीरिया है, दे आर ऑलवेज प्रेजेंट इन एक्सट्रीम टेम्परेचर, एक्सट्रीम एक्सट्रीम अनफेवरेबल कंडीशंस। डिफरेंस इनमें जो है जस्ट बिकॉज ऑफ द सेल वॉल, यू बैक्टीरिया में पेप्टिडोग्लाइकन होगी और आर्की बैक्टीरिया में जो है देयर इज प्रेजेंस ऑफ द स्यूडो पेप्टिडोग्लाइकन मेम्ब्रेन। फर्दर एक बैक्टीरिया का एग्जांपल है दैट इज माइकोप्लाज्मा। एक ऐसा बैक्टीरिया है जिसमें कोई सेल वॉल है ही नहीं, इसीलिए इसका कोई डेफिनाइट शेप नहीं है। सो द सेल वॉल ऑफ डिफरेंट बैक्टीरिया शोज डिफरेंट रिएक्शन टू ग्राम स्टेन्स। मतलब कि अच्छा ये भी जो है दिस इज आल्सो द माइकोप्लाज्मा वेयर देयर इज एब्सेंस ऑफ द सेल वॉल। हियर अब हम बात करते हैं ग्राम स्टेनिंग की। एक प्रोसीजर है दैट इज कॉल्ड एज स्टेनिंग, ग्राम स्टेनिंग, जहां पर आइडेंटिफाई किया जाता है दैट दिस बैक्टीरिया इट इज ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी फॉलो अ काइंड ऑफ अ प्रोसीजर, ग्राम स्टेनिंग प्रोसीजर। अगर वो प्रोसीजर होने के बाद बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव है तो वो पर्पल कलर के दिखाई देंगे, और अगर बैक्टीरिया ग्राम नेगेटिव है तो वो जो है लाइट पिंक या पिंक कलर के नजर आएंगे। ये पर्पल और पिंक डिफरेंस इसीलिए है जस्ट बिकॉज ऑफ द पेप्टिडोग्लाइकन लेयर। जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं उनमें थिक पेप्टिडोग्लाइकन की लेयर नजर आएगी, और जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होंगे दे आर गोइंग टू हैव थिन पेप्टिडोग्लाइकन, लेकिन उसके साथ साथ उनके पास लिपोपॉलीसेकेराइड भी होंगे। सो दिस इज द टू टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट। बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव हो सकते हैं, बैक्टीरिया ग्राम नेगेटिव हो सकते हैं। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में देयर इज थिक लेयर ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन, और जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं दे आर थिन लेयर ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन, लेकिन उसके साथ साथ उनके पास लिपोपॉलीसेकेराइड की लेयर भी प्रेजेंट होगी। अब हम बात करते हैं द थर्ड लेयर। सबसे आउटरमोस्ट लेयर की ग्लाइकोकैलिक्स की बात हो गई, उसके बाद जो लेयर आती है दैट इज सेल वॉल की बात हो गई। अब हम बात करने वाले हैं दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन यू कैन सी इट इज अ लिपिड लेयर, इट इज अ लिपिड लेयर। So here in this diagram you can see a lipid layer. So this is the head and this is the tail. ये tail है और ये head है. So ये एक layer ये हो गई और एक layer ये हो गई. So this is the very first layer and this is the second layer. So इस तरीके से आपको दो layer नजर आएगी. इसलिए हम इसको लिपिड की बाय लेयर बुलाते हैं। और इसी लेयर के बीच बीच में है आपको जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स भी नजर आएंगे। सो दीज आर द प्रोटीन्स, दीज आर द प्रोटीन्स आर प्रेजेंट ऑन दिस लेयर। सो न्यूमरस प्रोटीन्स प्रेजेंट हो गए और लिपिड तो है ही। तो इस तरीके से जो है देयर आर न्यूमरस प्रोटीन्स एंड लिपिड व्हिच इज मूविंग, और इन दिस लेयर द ट्रांसपोर्ट is also done because of this lipid bilayer. So whenever we see जैसे these are the molecules which are moving out from the cell through the bilipid plasma membrane. So कुछ कुछ molecules हैं जो अंदर आ सकते हैं, कुछ molecules हैं जो बाहर जा सकते हैं। ये entry और exit जो हो रहा है molecules का या ions का, it's all because of the plasma membrane. Plasma membrane it is made up of bilipid membrane, और उसमें जो है कुछ प्रोटीन्स है जो हेल्प करते हैं टू ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए, which helps in transportation of the molecules, which help in transportation of the ions. So this is how move in and move out of the molecules will takes place because of the plasma membrane. Even plasma membrane act as a permeability barrier. मतलब कि ऐसा नहीं है सभी चीज एंटर कर सकते हैं। Only there are some molecules which are able to enter inside a cell, और कुछ molecules ऐसे भी होते हैं which is not able to enter inside a cell. So that is why plasma membrane you can say it is a semi permeable membrane. मतलब कुछ चीजें हैं जो enter कर सकती हैं, कुछ चीजें हैं जो कि enter नहीं कर सकती हैं। So जो मॉलिक्यूल्स एंटर नहीं हो सकते, सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन विल एक्ट एज अ परमिएबिलिटी बैरियर, बैरियर मतलब विच प्रिवेंट्स द एंट्री। सो परमिएबिलिटी बैरियर की तरह काम करेगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो मॉलिक्यूल्स जो हैं सेल के अंदर एंटर नहीं होते, दोज मॉलिक्यूल्स के लिए जो है द प्लाज्मा मेम्ब्रेन विल एक्ट एज अ परमिएबिलिटी बैरियर।
फर्दर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर आपको कुछ एंजाइम्स भी नजर आएंगे, ऑक्सीडेटिव एंड रेस्पिरेटरी चेन एंजाइम। सो इस तरीके के मल्टीपल नंबर ऑफ एंजाइम्स नजर आएंगे, मल्टीपल नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स एंजाइम्स नजर आएंगे विच डज द फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। माइटोकॉन्ड्रिया तो है नहीं प्रोकैरियोटिक सेल में, तो माइटोकॉन्ड्रिया का काम है एटीपी जनरेट करना। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर जो है कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट होंगे विच इज गोइंग टू डू द फॉर्मेशन ऑफ द एटीपी। नेक्स्ट वील टॉक अबाउट द मीसोसोम्स। अब ये मीसोसोम्स क्या है? मीसोसोम्स एक तरीके के स्पेशल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है जो कि एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ही एक्सटेंशन है। अभी अभी हमने कुछ लेयर्स के बारे में बात की थी। सपोज दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ओके, फिर आती है लेयर दैट इज द सेल वॉल, फिर आती है लेयर दैट इज द ग्लाइकोकैलिक्स। सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ही एक एक्सटेंशन है दैट इज अ मीसोसोम। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन है, दिस इज द मीसोसोम। ओके, सो ये जो मीसोसोम है इट हेल्प्स टू अटैच द जेनेटिक मटेरियल दैट इज द न्यूक्लियोइड विच इज प्रेजेंट इन द bacteria that is in the prokaryotic cell. So mesosome, these are a kind of a forms tubule shape like, vesicle shape like, and lamellae shape like. Okay, which helps to attach the न्यूक्लियोइड द जेनेटिक मटेरियल। और कुछ और भी फंक्शन है मीसोसोम के, रेस्पिरेटरी ऑर्गन है ये, सेल वॉल का फॉर्मेशन भी यही करता है, डीएनए को डुप्लीकेट करता है, और इक्वली डीएनए डिस्ट्रीब्यूट हो तो डिस्ट्रीब्यूशन टू डॉटर सेल्स का काम भी यही करता है। सिक्रीशन प्रोसेसेस है, रेस्पिरेशन इंक्रीज करता है सरफेस एरिया ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इन सम बैक्टीरिया लाइक साइनोबैक्टीरिया देर आर सर अदर मेम्ब्रेनस एक्सटेंशंस भी हैं। सिर्फ मीसोसोमिक प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्सटेंशन एक अकेला नहीं है, कुछ और भी मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन है ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिसको हम बुलाते हैं क्रोमेटोफोर्स, जो कि पिगमेंट्स का फॉर्म ले लेते हैं। सो दीज क्रोमेटोफोर्स ये कुछ बैक्टीरियाज में प्रेजेंट होंगे जो कि कुछ और मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स हैं जो कि यूजुअली फोटोसिंथेसिस के एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं। सो इसीलिए ये उनमें ही प्रेजेंट होंगे जो बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस करते हैं, लाइक द साइनोबैक्टीरिया। सो कुछ और भी टाइप्स के आपको क्रोमेटोफोर्स नजर आएंगे लाइक द बैक्टीरियो क्लोरोफिल, बैक्टीरियोफियोफाइटिन, कैराटिनॉइड्स। ऑल दीज आर क्रोमेटोफोर्स जो कि किसी न किसी मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन के द्वारा ही प्रोड्यूस हुए हैं और ये पिगमेंट्स के जैसे काम करते हैं विच हेल्प्स इन द फोटोसिंथेसिस। तो नाम ही देख के हम देख सकते हैं बैक्टीरियो क्लोरोफिल, ये ऐसा क्लोरोफिल है जो बैक्टीरिया के अंदर है। बैक्टीरियोफियोफाइटिन, फियोफाइटिन इज इन्वॉल्व इन photosynthesis which is in bacteria, और carotenoids they are also involved in the photosynthesis which is present in the bacteria. नेक्स्ट, अब बात करते हैं पेरीप्लाज्मिक स्पेस के बारे में। स्पेस, अब ये स्पेस कहाँ पर प्रेजेंट है? ये जो स्पेस है इट इज ऑलवेज प्रेजेंट इन बिटवीन द लेयर्स। जैसे कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये सेल वॉल प्रेजेंट है, और ये ग्लाइकोकैलिक्स। तो यहाँ पर ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और ये क्या है, दिस इज द सेल वॉल, दिस इज द सेल वॉल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल के बीच में जो स्पेस प्रेजेंट होती है दिस इज कॉल्ड एज पेरीप्लाज्मिक स्पेस, this is called as periplasmic space. So in this diagram you can see this is a periplasmic space, ये जो space होती है this is the periplasmic space which is found in the prokaryotes with both an outer membrane and plasma membrane। और स्पेशली ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में आपको ये पेरीप्लाज्मिक स्पेस जरूर नजर आएगी। सो इन दिस स्पेस देयर आर इट इज प्रेजेंट बिटवीन टू मेम्ब्रेन्स or enzymes and other protein that help to digest and move nutrients into the cell। तो पेरिप्लाज्मिक स्पेस भी इन्वॉल्व होगी for the movement and for the digestion of nutrients into the cells। अब हम बात करते हैं appendages के बारे में। There are some appendages which is present in prokaryotic cells like the pili। Pili, here in this diagram you can see there are a number of hair like structures distributed in complete surface of the body, राइट, कंप्लीट सरफेस ऑफ द सेल। दिस इज कॉल्ड एज पीली, जो कि पूरे सरफेस एरिया में प्रेजेंट है। और दीज पीली को ही हम एक और नाम से बुलाते हैं दैट इज फिम्ब्री। और ये जो है ये हेलिकली अरेंज प्रोटीन होगा इसके अंदर दैट इज पीली। मतलब पीली एक तरीके का प्रोटीन है जो हेलिकली फॉर्म में अरेंज है, एक ऐसा प्रोटीन जो कि हेलिकली फॉर्म में अरेंज है विच गिव दिस स्ट्रक्चर दैट इज पीली। सो एक तरीके के हेयर लाइक एक्सटेंशंस हैं जो कि पीली प्रोटीन के बने हुए हैं which helps to attach this prokaryotic cell to any kind of substrate। So there are sex pilies also
जो कि हेल्प करेगा टू ट्रांसफर द डीएनए फ्रॉम वन प्रोकैरियोटिक सेल टू अनदर प्रोकैरियोटिक सेल। जैसे ये एक प्रोकैरियोटिक सेल है, इसी के ही पास में अगर हम एक और प्रोकैरियोटिक सेल बना दें, अगर इसी के ही पास में एक और प्रोकैरियोटिक सेल बना दें, उसके भी पास पीलीज होंगे, उसके पास बहुत सारे पीलीज प्रेजेंट होंगे। ओके, सो ये कुछ पीलीज हैं जो कि हेल्प करते हैं टू ट्रांसफर द जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन सेल टू द अनदर सेल। सो इसी को ही हम सेक्स पीलीज भी बुला सकते हैं। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज कॉन्जुगेशन। एक और अपेंडेज है, दैट इज फ्लैजुला। Flagella, they are very long. So इस तरीके से we can compare. Pili, they are very small. They are numerous in number. They are small in size and shape. Okay, but flagella जो होते हैं, they are very long, which rotate by means of a rotor. तो एक rotor के द्वारा ही ये flagella जो है move कर पाता है, जो कि साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन के अंडर ही एडजस्टेड होगा। And this is how, because of flagella, the cells are able to move. एंड कभी कभी प्रोकैरियोटिक सेल में एक से ज्यादा फ्लैजेला भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द प्लेसेस ऑन द सेल। फर्दर हियर प्रोकैरियोटिक सेल्स में जो है देयर इज प्रेजेंस ऑफ द साइटोप्लाज्म। ये जो ब्लू कलर का आपको नजर आ रहा है, दिस इज द साइटोप्लाज्म। ये इंटरनल स्ट्रक्चर है। ओके, इसके अंदर कोई भी ऐसे ऑर्गेनल्स नहीं है जो कि डबल मेम्ब्रेन बाउंड, मतलब मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स हों। ऐसे ऑर्गेनल्स नहीं नजर आते। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स जो हैं वो हैं दैट इज न्यूक्लियस, वो है माइटोकॉन्ड्रिया और वो है क्लोरोप्लास्ट। इन तीनों में से कोई भी आपको साइटोप्लाज्म में नहीं नजर आएगा। सो साइटोप्लाज्म को हाइलोप्लाज्म भी बोलते हैं, मैट्रिक्स भी बोलते हैं, साइटोसोल भी बोलते हैं। एक जेल लाइक सब्सटेंस से काफी डेंस से कोलॉइडल है। ओके, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के तुरंत नीचे ही प्रेजेंट है। इसमें जो है आपको काफी चीजें नजर आएगी, लाइक द वाटर, प्रोटीन्स, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स होगा, ग्लाइकोजन होगा, राइबोसोम्स तो हैं ही, और डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के आरएनए मॉलिक्यूल है, टीआरएनए, आरआरएनए, एमआरएनए। कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट होंगे, सॉल्ट होंगे, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स भी प्रेजेंट होंगे। इसमें कुछ इनऑर्गेनिक मटेरियल जैसे पॉलीफॉस्फेट होंगे। देर आर सम प्रेजेंस ऑफ पॉलीमर्स ऑफ ग्लूकोज, कुछ आर इन सल्फर, ये भी प्रेजेंट होगा। इवन here in the cytoplasm there is presence of inclusion bodies। ये एक तरीके के स्टोरेज ग्रेन्यूल्स हैं जो कि साइटोप्लाज्म में नजर आएंगे। तो ये स्टोरेज किसका करेंगे? ये स्टोरेज करते हैं कुछ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का, लाइक द साइनोफाइसिन, स्टार्च ग्रेन्यूल्स, ग्लाइकोजन, और कुछ इनऑर्गेनिक इंक्लूजन्स भी हैं जो स्टोरेज करते हैं फॉस्फेट का और सल्फर का भी। फर्दर प्रोकैरियोटिक सेल में आपको ना माइटोकॉन्ड्रिया नजर आएगा, ना लाइसोसोम्स, ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ना ही बाकी के ऑर्गेनल्स। ये सब एब्सेंट होंगे प्रोकैरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म में। लेकिन हाँ, राइबोसोम्स ये जरूर प्रेजेंट होंगे जो कि साइटोप्लाज्म में होंगे। लेकिन जैसे हमें पता है द राइबोसोम्स, उसका फंक्शन होता है प्रोटीन सिंथेसिस करना। सो ये जो आपको ब्राउन कलर का स्ट्रक्चर निकलते हुआ नजर आ रहा है, दिस इज द प्रोटीन। लेकिन प्रोटीन जब भी फॉर्म होता है, whenever in bacteria the protein synthesis whenever it takes place, the ribosome form polyribosome, मतलब mRNA के ऊपर। जनरली जब हम यूकैरियोटिक सेल में पढ़ते हैं, mRNA के ऊपर सिर्फ और सिर्फ एक राइबोसोम होता है, लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल में एक mRNA के ऊपर बहुत सारे राइबोसोम अटैच हो सकते हैं, और कम समय में जो है बहुत सारा प्रोटीन बन सकता है। सो दैट इज वाई इन बैक्टीरिया, एज वी नो दैट दे मल्टीप्लाई वेरी फास्ट। ये मल्टीप्लाई क्यों कर पाते हैं? क्योंकि पॉलीराइबोसोम्स, देयर आर नंबर ऑफ राइबोसोम्स व्हिच कैन अटैच ऑन द mRNA, एंड इन अ वेरी लेस टाइम दे कैन प्रोड्यूस नंबर ऑफ प्रोटीन्स। सो इस तरीके से बहुत फास्ट प्रोटीन सिंथेसिस देखने मिलेगा जस्ट बिकॉज ऑफ पॉलीराइबोसोम। नेक्स्ट, कुछ फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं जिसमें क्रोमेटोफोर्स होंगे, जिसको हम बुलाएंगे दे हैव बैक्टीरियोक्लोरोफिल। फर्दर किसी किसी प्रोकैरियोटिक सेल में जो है आपको एक न्यूक्लियस नजर आएगा, एक से ज्यादा भी न्यूक्लियस नजर आ सकता है। जब भी हम देखते हैं हियर in a clear zone inside the cytoplasm there is a large circular double stranded DNA, it is present, that is called as bacterial chromosome, और उसको नाम रखा गया है that is a nucleoid, it is not nucleus but it is nucleoid. Further,
Here, there is a nucleus, the genetic material. It consists of a long, double-stranded, circular DNA. So जब भी हम जैसे कि ये जैसे एक थ्रेड जैसा दिखाई दे रहा है tangled फॉर्म में, सो एक्चुअली जब हम इसको खोलते हैं तो आपको जो है एक तरीके से बहुत ही बड़ा सा सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए प्रेजेंट है। ये एक्चुअली इट इज अ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक, लेकिन वो पूरा एंटैंगल्ड, पूरा टैंगल्ड फॉर्म में है। सो दिस इज हाईली लूप्ड है ये, ओके, एंड इट इज कॉल्ड विद सम प्रोटीन्स, और ज्यादातर आपको ये सेंट्रल रीजन में ही नजर आएगा, ओके और इसी तरीके से ये न्यूक्लियोइड नाम दिया जाता है, ओके एंड इट इज विजिबली सेपरेट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द सेल इंटीरियर. Further, it is connected to the plasma membrane through mesosome. Mesosomes ही है जो कि इस न्यूक्लियोइड को अटैच करके रखेगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू. Further, next in the prokaryotic cell there is presence of ribosome. Ribosome का सिर्फ और सिर्फ एक function होता है, that is protein synthesis. So ribosome, they are present in the cytoplasm, okay, and they look like a granular like structure. They are smaller in size. जब हम यूकैरियोटिक के राइबोसोम को देखते हैं, जब हम प्रोकैरियोटिक सेल के राइबोसोम को देखते हैं, तो राइबोसोम जो प्रोकैरियोटिक सेल में वो बहुत ही छोटे हैं, लेकिन उनका सिर्फ एक ही काम है, दैट इज प्रोटीन सिंथेसिस करना. सो ये एमआरएनए के ऊपर बाइंड हो जाएंगे. सो दिस इज ब्लू, दिस इज एमआरएनए, और एमआरएनए के ऊपर ये राइबोसोम बाइंड हो गए हैं, और ये जो है दिस इज अ प्रोटीन सिंथेसिस टेकिंग प्लेस. सो यहाँ पर भी वो एक ही काम करते हैं, दैट इज प्रोटीन सिंथेसिस करना. नेक्स्ट यहाँ पर, हियर इफ यू सी दिस डायग्राम, यहाँ पर आपको एक स्ट्रक्चर नजर आएगा, दैट इज द प्लाज्मिड. प्लाज्मिड ये एडिशनल सर्कुलर डीएनए है, इसलिए हम इसको एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए भी बोलते हैं. प्लाज्मिड, दिस इज द एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, सर्कुलर डीएनए है, और इसको मिनी क्रोमोसोम भी बुलाते हैं, और इसका नाम है दैट इज द प्लाज्मिड. जैसे कि कोई कोई बैक्टीरिया होते हैं जो कि रेसिस्टेंट होते हैं एंटीबायोटिक्स के लिए, सो इट्स ऑल बिकॉज ऑफ द प्लाज्मिड. फर्टिलिटी, कुछ फंक्शंस हैं इनके प्लाज्मिड के, ओके. सो जेनेटिक इंजीनियरिंग बहुत ज्यादा यूज किया जाता है प्लाज्मिड का, जीन क्लोनिंग के लिए, ओके, gene therapy के लिए. So there are number of benefits just because of the plasmid which is used in recombinant DNA technology. gene transfer के लिए बहुत ज़्यादा use किया जाता है इसको. It means genetic engineering में सबसे ज़्यादा use किया जाता है plasmid का. Further, endospore. अब endospore क्या है? कभी कभी, सो व्हेनेवर वी टॉक अबाउट बैक्टीरिया, जब भी बैक्टीरिया कभी अनफेवरेबल कंडीशन में पहुंच जाता है तो वो एंडोस्पोर फॉर्म कर लेते हैं, और जैसे ये एंडोस्पोर फॉर्म करते हैं, ये एंडोस्पोर ये ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि रेसिस्टेंट है किसी भी एनवायरमेंट, क्लाइमेटिक कंडीशन के लिए. कोई भी एनवायरमेंटल, कैसा भी एडवर्स एनवायरमेंटल कंडीशन रहने दो, कैसा भी अनफेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशन रहने दो, एंडोस्पोर, they are able to survive in all the adverse climatic condition. ओके, तो इस तरीके से जब भी बैक्टीरिया व्हेन दे फेस अनफेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन दे फॉर्म एंडोस्पोर. एंडोस्पोम, एंडोस्पोर जैसे ही फॉर्म होगा तो ये हर एक एनवायरनमेंट को जो है रेसिस्ट कर सकता है. अगर बॉइलिंग वाटर में भी डाल देंगे तो भी, एसिडिक वाटर में भी डाल देंगे तो भी, एंडोस्पोर इट इज गोइंग टू एबल टू सर्वाइव इन दिस कंडीशन. और जब फेवरेबल कंडीशन आ जाएगी, फेवरेबल कंडीशन आते ही एंडोस्पोर जो है वो हैच होगा एंड इट विल गिव राइज टू द बैक्टीरिया. इसीलिए बैक्टीरिया जो है वो आज तक सरवाइव कर पा रहे हैं इवन इन एडवर्स कंडीशन आल्सो. सो कुछ ऐसा नहीं है सारे प्रोकैरियोटिक सेल एंडोस्पोर बनाते हैं, नहीं. देयर आर सम प्रोकैरियोटिक सेल्स व्हिच फॉर्म द स्पोर्स, दैट इज कॉल्ड एज एंडोस्पोर, क्योंकि ये स्पोर बैक्टीरियल सेल के अंदर बनता है. सो इट इज रेसिस्टेंट टू द ड्रॉट कंडीशन, इट इज रेसिस्टेंट टू हाई टेम्परेचर, कोई भी हजार्डियस नेचर रहने दीजिए, एंडोस्पोर इट इज रेसिस्टेंट टू दैट. और जैसे ही वो हजार्डियस कंडीशन रिमूव हो जाएगी, वो जो एंडोस्पोर है वो जर्मिनेट करेगा और न्यू प्रोकैरियोटिक सेल का फॉर्मेशन होगा. फर्दर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द ई कोलाई. ई कोलाई जो है ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, मतलब इसमें बहुत ही थिन सेल वॉल में थिन पेप्टिडोग्लाइकेन लेयर होगी और लिपोपॉलीसेकेराइड की लेयर प्रेजेंट होगी, और ये नॉन पैथोजेनिक है, रॉड शेप बैक्टीरिया है.
सिम्बायोटिक बैक्टीरिया है, मतलब ये हमारे इंटेस्टाइन में रहता है। दे आर प्रेजेंट इन द लोअर इंटेस्टाइन ऑफ वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स। तो ये स्टडी करने के लिए बहुत अच्छा ऑर्गेनिज्म है, इसलिए इसको मॉडल ऑर्गेनिज्म नाम दिया गया है। सो इसका यूज जो है बहुत सारे बायोलॉजिस्ट यूज करते हैं। अच्छी बात यह है इनमें कि ये बहुत ही जल्दी डिवाइड करते हैं, एवरी 20 मिनट्स में, एंड दे रिक्वायर 37 डिग्री सेल्सियस, इसलिए आराम से लैब में इसको कल्चर कर सकते हैं ऑप्टिमम कंडीशंस में। And 2 micrometer, this is the length, okay, or thickness is 0.8 to 1 micrometer. And outer cell wall जो है उसकी लेंथ दी गई है, that is 100 angstrom thickness it is present. और इसमें फ्लैजुला आपको भरपूर नजर आएंगे, इसीलिए ये इकोलाई बैक्टीरिया जो है ये मोटाइल है। ओके, और इसमें भी यहाँ पर यू कैन सी देयर इज वन सर्कुलर क्रोमोसोम विच इज प्रेजेंट, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है और उसका लेंथ 1400 माइक्रोमीटर लेंथ है। और इसमें भी आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन नजर आएगी। ओके, उसके बाहर सेल वॉल और उसके बाहर कुछ कैप्सूल लेयर नजर आएगी। ओके, सो इसमें जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट है और सेल वॉल, इनके बीच में पेरीप्लाज्मिक स्पेस है, मतलब पहले क्या आएगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन आएगी, उसके बाद आएगी सेल वॉल। सो बीच में जो है पेरीप्लाज्मिक स्पेस प्रेजेंट है। फर्दर प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो वो हेल्प करेगा टू ट्रांसपोर्ट सम प्रोटीन्स, टू ट्रांसपोर्ट सम आयंस, टू ट्रांसपोर्ट सम मॉलिक्यूल्स। अगर सपोज कोई वाटर बॉडी है, इफ उसमें अगर ई कोलाई मिलता है, तो हम बोल सकते हैं कि ये जो वाटर बॉडी है इट इज कंटामिनेटेड विद फीकल मैटर, क्योंकि ह्यूमन इंटेस्टाइन में ई कोलाई रहते हैं। सो इस तरीके से अगर कोई भी वाटर सोर्स में आपको ई कोलाई मिलता है, तो समझ लेना वो जो वाटर बॉडी है इट इज कंटामिनेटेड विद द फीकल मैटर। फर्दर ये जो ई कोलाई है वो पेरीट्राइकस है। सो यू कैन सी मोनोट्राइकस, अगर एक पॉइंट से फ्लैजुला राइज हो रहा है तो मोनोट्राइकस, दो पॉइंट से फ्लैजुला राइज हो रहे हैं तो एम्फीट्राइकस। ओके, एक ही पॉइंट से बहुत सारे फ्लैजुला राइज होता है आइफोट्राइकस, और जो ई कोलाई होता है वो होता है पेरीट्राइकस। So this organism it is always present in the normal flora of our intestine. So हमारे intestine में क्या कर रहा है, symbiotic association में present है, मतलब ये help करता है to metabolize the food, वो help करता है to produce the vitamin K, और food के absorption में भी help करेगा। So यही सारी फायदे हमें ई कोलाई से मिल रहे हैं। हम ई कोलाई को क्या देते हैं, न्यूट्रिएंट्स, जो भी हम खाते हैं वो ई कोलाई खाता है। Okay, so E. coli it has both aerobic and anaerobic respiratory mechanism to generate ATP. So E. coli it is able to generate ATP also. So respiratory chain enzymes present होंगे E. coli के plasma membrane में, जिसकी के वजह से वो ATP generate कर पाता है। Further, in the E. coli, in the cytoplasm there has number of molecules, नंबर ऑफ कंपोनेंट्स। ई कोलाई के अंदर डीएनए है, आरएनए है, एंजाइम्स है, ग्लाइकोजन है, अमाइनो एसिड है, मोनोसेकेराइड है, और बहुत सारे मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं। और साथ साथ ई कोलाई के अंदर जो है काफी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक चीजें भी प्रेजेंट हैं। एंड इन ई कोलाई राइबोसोम तो है, लेकिन वो 70S टाइप का राइबोसोम प्रेजेंट है। ई कोलाई के अंदर जो है 70S टाइप का राइबोसोम प्रेजेंट है। फर्दर कुछ कुछ फ्री राइबोसोम्स भी नजर आते हैं प्रोकैरियोटिक सेल में, और कभी कभी पॉलीराइबोसोम्स भी नजर आते हैं प्रोकैरियोटिक सेल में, जो कि बहुत ही फास्ट प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करेंगे। सो इस तरीके से जो है दिस वाज ऑल अबाउट द प्रोकैरियोटिक सेल, एंड दिस इज हाउ द वीडियो एंड्स, एंड थैंक यू वेरी मच।